Yes, good day to all of you. This is Imran Al Haq with a new reading video. This time, book 19. It is test 4 and reading passage 2. You can see deep sea mining. Okay, without wasting time, we are going to see the questions. What type of questions are given? Okay, now you see the question. Okay, first of all, okay, read out the instruction. Reading passage 2 has 6 paragraphs. We are having 6 paragraphs in the text. Which paragraph contains the following information? In which paragraph these information is given? You can see these information. These are the statement. These are the reviews. We'll have to read out first this one, then we'll have to check in the text its answer. Okay, let's start. Okay, write the correct letter A to F in the boxes 14 to 17. As you know that in exams, answer sheet is given and the boxes are given. Even in that sheet, you will have to write down the A to F, whatever your answer is in that box. Okay, so we are going to start. Reference to the rapidly increasing need for one raw material for the transport industry. So underline these keywords. I have underlined. Let's see. Okay, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, रैपिडली इंक्रीजिंग है, और रॉ मटेरियल है. वी विल चेक वेयर दैट रॉ मटेरियल इज गिवन. ओके, रैपिडली एंड reference to the rapidly need to raw material. Okay, raw material, raw material, you can see. Okay, deep sea contains more nickels. You can say this is the raw metals are there. Okay, rare earth metals. Okay, the deep sea contains more nickels, cobalt and rare earth metals that all land reserves combined. Okay जी, all land reserves combined. यानी जो सी बेड है, डीप सी है, वो जितने भी ज़मीन पर रिजर्व्स हैं, ज़खायर हैं, उनसे कहीं ज़्यादा हैं. निकल्स, कोबाल्ट, ठीक है जी, और दूसरी जो रेयर मेटल्स हैं वो ज़मीनी ज़खायर से कहीं ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, माइनिंग कोऑपरेशन आर्ग्यू दैट डीप सी एक्सप्लोरेशन could help diversify the supply of metals and point to the fact of the demand for the aluminium, cobalt. Yes, you know, you can say this car car batteries. Now we'll read it from here. Okay, mining corporation argue that deep sea exploration कि जो गहरा समंदर है, अगर उसमें को आप एक्सप्लोर करेंगे, कुड हेल्प डाइवर्सिफाई द सप्लाई ऑफ मेटल्स. तो जो मेटल्स की सप्लाई है उसमें बेहतरी हो सकती है. एंड पॉइंट टू द फैक्ट दैट डिमांड फॉर रिसोर्सेज, और ये जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड क्या हो सकती है, सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट for electric car. You can say we have read, and demand and other metals to power technology and smartphone is soaring. Now you see is soaring. Okay, rapidly increasing. Now you can see rapidly increasing. We have just read about the metals also, the material also, and transportation car batteries also. So you can see this one here. Reference to the rapidly increasing is soaring. Okay, need for the raw material, we have read raw material also, transport car batteries also. So in in C option it's given, so write down C in front of. Okay, here. So the next thing you can see, a rough estimate of the rough estimate, underline rough estimate of the area of the earth covered by the sea. Okay, this is really very important and also significant in a sense that that area must be given in percentages. So we will check that where it's given. So if you see in paragraph F, you see paragraph F, the ocean occupies. Now the ocean occupy around 70% of the planet. You see, the ocean occupy. समंदर जो है वो तकरीबन इस सियारे का 70% है, 70% तक. सो नो यू कैन सी द परसेंटेज इज गिवन. तो ये क्या कहता है कि एक रफ एस्टिमेट लगाएं कि
जमीन का कितना हिस्सा जो है वो समंदर से ढका हुआ है। तो जमीन का कितना हिस्सा है जी, जमीन वो कहता है प्लेनेट को, तो कितना हिस्सा है 70%। तो अराउंड है, तो यहाँ पे वो कहता है कि रफ एस्टिमेट, ये देखिए रफ एस्टिमेट है, तो रफ एस्टिमेट है, और यहाँ पे वो कहता है कि अराउंड। अब ओशन ऑक्यूपाई जो समंदर है वो है 70% इस प्लेनेट पर। तो एक रफ एस्टिमेट है कि रफ एस्टिमेट ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ कवर्ड फॉर 70%। तो दिस इज गिवन इन एफ कि जो जमीन का 70% एरिया है वो समंदर से ढका हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है जी। तो ये हाउ अ पर्टिकुलर अंडर वाटर हैबिटेट, how a particular underwater habitat where minerals and organisms coexist is formed. Now you can see underwater habitat is there, a place is there underwater that is a particular for the minerals and organism. They are existing together, they coexist, okay. So this habitat is formed there. So we'll check what kind of habitat is formed there, and that habitat is formed of minerals and organisms. Okay, we'll check where it is given. Okay ji, so this one is how given. You can see this one, underwater habitat where minerals and organisms. We'll check here underwater. Despite rising the list of the sand, the new global rush features with the fast resource scrambles, including a general disregard of the environment. Okay, so not given. Scientific research including recent papers in Marine Policy Journal, he suggested the deep seabed and hydro, you can say this one. Okay, now you see this one, how a particular underwater habitat, he is talking about the underwater habitat. एक पानी के नीचे जो है वो habitat है, मस्कन है, जगह है जहाँ पे कुछ मिनरल्स ऑर्गेनिज्म जो है वो इकट्ठे रहते हैं और वो बनता है वहाँ पे, ठीक है जी। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि पहले वो कहता है कि मीट्स वोल्केनिक मैग्मा हैव क्रूशियल इम्पैक्ट्स अपॉन अ बायोडाइवर्सिटी एंड द ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है। द मिनरल रिच वेंट्स, अब देखें द मिनरल रिच वेंट्स, वेंट्स कहते हैं कि कोई ओपनिंग्स हो, ठीक है जी, कोई होल है, जैसे कोई सुराख है उसको कहते हैं, एंड देयर सराउंडिंग, और इसके जो सराउंडिंग्स है, ऑल्सो अ होम है जी। ये होम किसका है जी, ये देखें हैबिटेट है, होम है, हैबिटेट है, अंडर वाटर है, ठीक है जी। तो ये मिनरल्स का और ऑर्गेनिजम्स का है। तो आप देखें अब क्या है, दी मिनरल रिच वेंट्स एंड देयर सराउंडिंग। एक तो मिनरल रिच वेंट्स है, तो यहाँ पे भी वो यही कहता है कि मिनरल्स हैं और ऑर्गेनिजम्स हैं। दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, टू मैनी वेल नोन एनिमल्स, ये देख ले वेल नोन एनिमल्स हैं, तो होम है, इसका भी है, इसका भी है, यहाँ पे को एग्जिस्ट करते हैं ये दोनों ही, ठीक है जी। तो आप देख लें, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट डीप सी माइनिंग पोजेज अ ग्रेव थ्रेट टू दीज वाइटल सीबेड फंक्शंस। तो ये हमारे पास ये जो है, ये आप देख सकते हैं कि मिनरल रिच वेंट्स भी हैं और ये हैबिटेट भी है, और ये हमारे पास जो हैं वो आप देख लें ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो ये हमारे पास ई ऑप्शन में दिया गया है, तो वी विल राइट डाउन ई हियर। ओके, यू सी ई। द नेक्स्ट थिंग यू सी reference to the fact, there is a fact given that the countries of the world have yet to agree on the rules for exploration of the seabed, कि जो सी बेड की एक्सप्लोरेशन करनी है उसके रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उन पर अभी दुनिया के ममालिक जो हैं उन्होंने अग्री होना है, ठीक है जी, अभी वो इस पर मुतफिक होंगे। तो हम देखते हैं, पहली बात तो ये है, ये हम पे देख लें, बट द एनवायरमेंट ऑफ लीगल ग्रुप्स arguing that there are potential massive and unknown ramification for the environment and for communities, and that the global, ये देखें global regulatory framework is not yet drafted। हाँ जी, अगर आप देखा जाए is not yet drafted, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि वो क्या कहता है, कहता है कि रेफरेंस टू द फैक्ट दैट द कंट्रीज, ग्लोबल हमने पढ़ा है ना जी, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज येट टू अग्री, उन्हें अभी अग्री इस पर होना है, यानी अभी इन रूल्स पर अग्री होना है। कौन से रूल्स पर, फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी बेड, कि जो सी बेड की एक्सप्लोरेशन होती है उसके मुतल्लिक रूल्स पर कोई ड्राफ्ट बनाना है, कोई रूल्स बनाने हैं, फिर इन कंट्रीज को उस पर
एग्री होना है। तो ये देख लें, अभी वो कहता है जी, ये ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज नॉट येट ड्राफ्टेड, ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज नॉट येट ड्राफ्टेड, तो अभी तक वो बनाया ही नहीं गया, अग्री ही नहीं हुआ गया। डिस्पाइट राइजिंग इन द लास्ट हाफ सेंचुरी द न्यू ग्लोबल गोल्ड रश डीप सी माइनिंग शेयर्स मैनी फीचर्स विद द पास्ट रिसोर्सेज स्क्रैम्बल्स इंक्लूडिंग अ जनरल डिसरिगार्ड, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास है। बट इन्वायरमेंटल एंड लीगल ग्रुप्स हैव अर्ज्ड काशन arguing there are potential massive or unknown ramification, तो आप ये देख लें in the nearby communities and that the global, ये वाली चीज, ठीक है जी, कि जो आलमी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अभी तक उस ड्राफ्ट पे अग्री ही नहीं हुआ, तो ये हमें डी पर दिया गया है, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास 18 to 23 है। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये हमारे पास 8 to 23 है, ठीक है जी। मैच ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट persons or people. No, you can see at the bottom, you can see this is the bottom, some persons are given this one, okay, they are researchers or scientists, they are given, we'll have to match them with the given statement, which statement they have said, we'll look for in the text and write down A, B, C in front of these reviews, okay. So we'll check first of all this one, Professor Matt Upton, okay. We'll go for the Professor Matt Upton, okay. See, in the very first paragraph it is given, you see this one. When Professor Matt Upton found that a microbe from a deep sea sponge was killing pathogenic bugs in a laboratory, तो प्रोफेसर जो मैट उपटन है, जब उसको पता चला कि एक कोई जरसूमा है वो डीप सी बेड स्पॉन्ज से है और वो किसी कीड़े को मार रहा है इन हिज लेबोरेटरी में, he raised it could be a breakthrough in the fight against antibiotic resistant superbugs, तो उसको पता चला कि ये एक पेशरफ्त हो सकती है कि जो उसकी फाइट है अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपरबग्स हैं उनके खिलाफ, which are responsible for thousands of death in a years in the UK, और ये यूके में हज़ारों जो मवात होती हैं उनकी जिम्मेदार भी है। फर्दर टेस्ट कन्फर्म्ड, मजीद टेस्ट में उन्होंने बताया दैट एन एंटीबायोटिक फ्रॉम द स्पॉन्ज बैक्टीरिया फाउंड लिविंग मोर देन 700 मीटर अंडर द सी, और ये 700 मीटर जो है वो सी से नीचे रह रहा है, एट द रॉक टेल ट्रॉफ इन द नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ट्रॉफ में, वॉज प्रीवियसली अननोन टू साइंस, पहले साइंस को ये इसके बारे में नहीं पता था। बूस्टिंग इट्स पोटेंशियल एज अ लाइफ सेविंग मेडिसिन, अब इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है और इसको लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पे लिया जा रहा है। बट Upton and other scientists who view the deep ocean and its wealth of the unique and undocumented species as a, तो हम यहाँ पे देखते हैं जी इसको कि ये कहाँ पे दिया गया है हमारे पास जी। तो अब मूव अवे फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन और हैविली माइंड रिजर्व का यहाँ पे बात नहीं की, द नेगेटिव इफेक्ट्स, कहीं पे नेगेटिव इफेक्ट्स की भी बात नहीं कर रहा, एक्सप्लोरेशन ऑन द लोकल एरियाज इनहेबिटेंट्स की बात नहीं की, ना लोग इनहेबिटेंट्स की। देयर आर मोर वर्थवाइल थिंग्स टू एक्सट्रैक्ट, जी ये देख लें, देयर आर मोर वर्थवाइल थिंग्स टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सी देन मिनरल्स, यानी मिनरल्स के अलावा भी बहुत सी का जो मुफीद चीज़ें हैं, जो कीमती चीज़ें हैं वो समंदर की तह से निकाली जा सकती हैं, आप देख रहे हैं, तो ये भी देख लें। वो कहता है कि ये जो है ना, बूस्टिंग इट्स पोटेंशियल एज अ लाइफ सेविंग मेडिसिन, ये लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पे इसको देखा गया है। बट Upton एंड अदर साइंटिस्ट हु व्यू द डीप ओशन, जो डीप ओशन को देखते हैं, एंड इट्स वेल्थ ऑफ यूनिक एंड अनडॉक्यूमेंटेड स्पीशीज, और इसकी वेल्थ और जो अनडॉक्यूमेंटेड स्पीशीज हैं, जो अभी तक डॉक्यूमेंटेड स्पीशीज नहीं है, उनको आर प्रोस्पेक्टिंग ग्राउंड फॉर न्यू मेडिसिन, ये न्यू मेडिसिन के तौर पर उनको वो देख रहे हैं। फियर सच पोटेंशियल विल बी लॉस्ट इन द रश टू एक्सप्लॉइट द डीप सी इक्वली रिच मेटल एंड मिनरल रिसोर्सेज, तो अगर मिनरल और रिच मेटल रिसोर्सेज में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा कि फियर सच पोटेंशियल विल बी लॉस्ट, तो ये जो पोटेंशियल्स है ये लूज कर जाएगा, ठीक है जी। अगर वो रिच मिनरल्स और मेटल्स और मिनरल्स के पीछे पड़ जाएंगे तो ये जो मेडिसिन के तौर पे, लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पे हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो पोटेंशियल लूज कर जाएगा। तो इसका मतलब है
कि देर आर मोस्ट वर्थवाइल थिंग्स, यानी मिनरल्स के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ सेविंग हैं। ठीक है जी, ये वाली चीज़ें। तो कौन कह रहा है जी? तो कह रहा है प्रोफेसर मैट उपटन कह रहा है। ये ए में है तो हम इसके सामने ये लिख देंगे। फिर नोटाबीना भी है कि कहीं पे भी दो ऑप्शन भी ज़रूर आएंगी, तो वो भी आपने ज़रूर देखनी है कि कहीं पे आ तो नहीं रही। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देख लें, ये है जी जूली हंटर है, जूलियन ऑगिंग है, प्रदीप सिंह है। तो सरदार जी भी आए हैं, हमारे बड़े अच्छे व्यूवर्स भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो वो भी बड़े शौक से वीडियोस देखते हैं। तो बहुत ही मेहनती और बहादुर कौम है। तो चले हम देखते हैं जी सरदार जी और उनके जो साथी हैं वो क्या कहते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, डी ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे, डिस्पाइट अ राइजिंग इन द लास्ट हाफ सेंचुरी द न्यू ग्लोबल रश ऑफ द डीप सी शेयर्स मैनी फीचर्स विद पास्ट रिसोर्सेज स्क्रैम्बल्स इंक्लूडिंग अ जनरल डिसरिगार्ड। एक तो डिसरिगार्ड है जी फॉर द इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट एंड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल। ये देखें, मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल, यानी जो लोकल लोग हैं उनको साइड पे किया जा रहा है, लोकल लोगों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, किनारे के साथ लगाया जा रहा है, उनके जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे, एंड देयर राइट्स नहीं दिए जा रहे। ठीक है, अब ये तो क्या कहता है, रिटन अब पेपर रिटन बाय, ये इन लोगों ने लिखा है, जूली हंटर ने, जूलियन ऑर्गन ने, ठीक है जी, और प्रदीप सिंह ने ये लिखा है। तो ये आप देख लें, मार्जिनलाइजेशन इंडिजीनियस को किया है। और फिर क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग जनरल डिसरिगार्ड, और डिसरिगार्ड भी है किसके लिए, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट के लिए। ये देखें, तो हम देखते हैं जी यहाँ पे इसको, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अंडर सी एक्सप्लोरेशन ऑन लोकल एरियाज, एंड ये देखें जी लोकल एरियाज की भी बात हुई है यहाँ पे, और इसके इनहेबिटेंट्स आर बीइंग इग्नोर्ड। ये देखें बीइंग इग्नोर्ड है तो उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे है बी ऑप्शन है, इसमें हम बी ऑप्शन को हम ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कहीं और तो नहीं इस तरह की उन्होंने बात की, तो वो भी हम देख लेते हैं जी। ठीक है, ये तो हो चुका है हमारे पास, ये भी हो चुका है। हम देखते हैं, no other form of human exploration will have such destructive impact। destructive impact की अभी बात तो नहीं की, तो हम आगे उसको जरूर पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, ये है, एंड प्रदीप सिंह फ्रॉम द सेंटर फॉर मैरीन एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, Bremen argues, the author say that knowledge of the deep sea bed remains extremely limited। जो नॉलेज है ना जी डीप सी बेड का, वो बहुत महदूद होके रहता है, रह गया द सरफेस ऑफ द मून, जबकि जो मून, मरीख और दूसरी वीनस की सरफेसेस है ना, हैव ऑल बिन मैप्ड एंड स्टडीड इट इन मच ग्रेटर डिटेल। इनको तो बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा गया है, लेकिन वो कहता है कि नॉलेज ऑफ द डी सी बेड रिमेन एक्सट्रीमली लिमिटेड, लेकिन ये लिमिटेड रहा है। जो डीप सी बेड है उसको इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा गया जितनी मून, मरीख और वीनस की सतह को पढ़ा गया है। इनको मैप किया गया है, इनको अच्छी तरह से ग्रेट डिटेल के साथ स्टडी भी किया गया है। लीडिंग मैरीन साइंटिस्ट टू कॉमनली रिमार्क दैट द विद रिस्पेक्ट टू द डीप सी बेड वी डू नॉट येट नो व्हाट वी नीड टू नो। तो डीप सी के बारे में वो कहता है कि जो हमें जानना चाहिए था वो अभी तक हम नहीं जान सके। ठीक है, तो हम देखते हैं जी, नहीं जान सके, तो अभी हम देखते हैं, ये देखते हैं। ठीक है जी, वो कहता है कि नो अदर फॉर्म, ये तो हमने पढ़ लिया। मोर इज नोन अबाउट अदर स्पेस, ये जी अबाउट आउटर स्पेस हमने पढ़ा है, वीनस के बारे में, मून के बारे में, ठीक है जी, और मार्स के बारे में पढ़ा है ना जी। देन व्हाट अबाउट लाइज बीनीथ द ओशन, जो कुछ समंदर के नीचे है उसकी निस्बत हमने ज्यादा आउटर स्पेस को पढ़ा है जी। तो ये लें, फिर आप लिखें, ये भी बी, हमने बी भी कर लिया, ये भी कर लिया, और हमने ए भी कर लिया। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब हमने ये बी कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास अब है जो 1 2 ये 3। अब हमारे पास है जी डी जॉन कॉपले, डी जॉन है, कॉपले है, ये देखें डी जॉन कॉपले। हम देखते हैं जी डी जॉन कॉपले है वो कहाँ पे है हमारे पास। ठीक है जी, तो देख लें जी डी जॉन कॉपले, डी जॉन कॉपले,
ढूंढें जी जरा डी जॉन कॉपले को। हमारे पास डी जॉन कॉपले, डी जॉन कॉपले है हमारे पास, डी जॉन कॉपले पॉलिसी ढूंढने पड़ेंगे जी आपको, ठीक है जी। डी जॉन कॉपले, डी जॉन, ये देखें डी जॉन कॉपले भी आपको मिल गया है, ठीक है। देख लेते हैं आप इसको भी जरा। अच्छा, इससे एक दो पेज पीछे पड़े। एक्सट्रैक्शन मेथड्स वुड प्रोड्यूस लार्ज सेडिमेंट plumes and involve the discharge of waste back into the ocean, significantly disturbing sea floor environments. The paper continues. On deep sea vents, जो गहरे समंदर के जो होल्स हैं या ओपनिंग्स हैं, साइंटिस्ट आर क्लियर, इनके बारे में साइंटिस्ट क्लियर हैं। ये डॉक्टर जॉन कॉपले कहता है ऑफ द नेशनल असेंबली। क्या कहता है जी? वी डू नॉट वांट माइनिंग ऑन देम, हमें वहाँ पे ज़्यादा माइनिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब हमें इससे ज़्यादा माइनिंग नहीं करनी चाहिए। कहाँ माइनिंग नहीं करनी चाहिए जी? वो देख लें ज़रा जी। माइनिंग जी, देयर इज वन मैरीन लाइफ हैबिटेट वेयर एक्सपर्ट्स एग्री, ये एक्सपर्ट्स हमने देखा है ना, माइनिंग शुड नॉट बी टेकन प्लेस है जी, माइनिंग शुड नॉट बी टेकन प्लेस। ये देख लें, माइनिंग शुड नॉट बी टेकन प्लेस, ये कहता है माइनिंग शुड नॉट बी टेकन प्लेस। तो यहाँ पे भी वो कहता है वी डू नॉट वांट माइनिंग ऑन देम, कह रहा है जी। ये देख लें ये, और साइंटिस्ट आर क्लियर, साइंटिस्ट आर क्लियर हैं। तो यहाँ पे वो क्या क्या कहता है? कहता है ये देयर इज जी वेयर एक्सपर्ट्स एग्री, साइंटिस्ट आर क्लियर है। तो फिर ये हमारे पास है जी डॉक्टर जॉन कॉपले। तो लिखें ज़रा यहाँ पे सी लिखा है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी हो गया। अब हमारे पास बच गया है जी 2018 और 21। तो हम देखते हैं जी माइक जो है हमारे पास, माइक जॉनसन। हम चले माइक जॉनसन को देखते हैं, ठीक है जी। ये देख लें माइक जॉनसन है हमारे पास। तो ये देख लें, उसके नीचे ही माइक जॉनसन दिया हुआ है, कैपिटल लेटर्स में होते हैं, तो इनको अच्छी तरह से ज़रा देख लें। अच्छा जी, द ओशन ऑक्यूपाई, ये हमने पढ़ा था, एंड आर रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड। अच्छा, 70% जो है वो प्लेनेट का ओशन पर मुश्तमिल है और ये तकरीबन अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है। ये माइक जॉनसन कहता है, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ, कहता है जी ये कोई कैनेडियन अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन कंपनी है। इट मेक्स सेंस टू एक्सप्लोर दिस अनटैप्ड पोटेंशियल, इट मेक्स सेंस टू एक्सप्लोर दिस अनटैप्ड पोटेंशियल इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे। जो माहौलियाती मुस्तहकम एक तरीका है ना, उस तरीके के साथ ये अनटैप्ड पोटेंशियल है, इनको एक्सप्लोर करना चाहिए, जिनको अभी तक छुआ नहीं है इन पोटेंशियल्स को। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूली लुकिंग एट द फास्ट डिप्लीटिंग लैंड रिसोर्सेज, बजाय इसके कि हम ज़मीन पर मौजूद जो तेज़ी से ख़त्म होते हुए ज़राए हैं उनको देखें। हमें चाहिए कि जो अनटैप्ड पोटेंशियल हैं, जो माहौलियाती सस्टेनेबल भी एक तरीका है, उन पर जाना चाहिए ऑफ द प्लैनेट टू मीट सोसाइटीज़ राइजिंग नीड, ताकि मुआशरे की बढ़ती हुई ज़रूरियात को भी पूरा किया जा सके। तो हम देखते हैं जी इसको भी ज़रा, ठीक है। अब देखें, नो अदर फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन विल हैव सच डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑन मैरीन एज लाइफ ऑन द सी बेड, ठीक है जी। ये तो नहीं आ रहा। अ मूव अवे फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन, ये है जी, अ मूव अवे फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन ऑफ हैवी माइंड रिसोर्स ऑन द लैंड इज गुड आइडिया। कह रहा था ना कि अगर आप अ मूव अवे फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन ऑफ द हैवी माइंड रिजर्व्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड्स हैं, उसके ज़खायर हैं, अगर उनसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए तो ये एक अच्छा आइडिया होगा। तो यहाँ पे भी वो वही बात कर रहा है। ये देखें ज़रा, कहता है कि इट मेक सेंस टू एक्सप्लोर दिस अनटैप्ड पोटेंशियल, कि अनटैप्ड पोटेंशियल जो है ना कहाँ पे है? एन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे, और जो माहौलियाती सस्टेनेबल मुस्तहकम रास्ते हैं ना, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। और अनटैप्ड है, बजाय इसके कुछ कंटिन्यू लुकिंग एट द फास्ट डिप्लीटिंग लैंड रिसोर्सेज, जो लैंड रिसोर्सेज हैं जो कम होते हुए आप मुस्तकिल उनको देखते हैं, उनकी बजाय जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वो भी कहता है कि अवे हो जाए, अनटैप्ड पोटेंशियल जो हैं उनको देखें, ये हैवीली माइंड रिजर्व जो है उनको ना बार बार देखें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो आ रही है ये। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचती है और वो ऑप्शन है हमारे पास ये वाली, ठीक है जी, वेराना टोनीक्लिफ, ठीक है जी, वेराना टोनीक्लिफ है हमारे पास। हम देखते हैं वेराना टोनीक्लिफ कहाँ पे है, ठीक है जी। हमारे पास है जी वेराना टोनीक्लिफ,
ये देखें वेराना टूनिक्लिफ है हमारे पास है जी। चले हम इसको देखते हैं। माइनिंग विल बी द ग्रेटेस्ट असॉल्ट ऑन द डीप सी इकोसिस्टम। ये देखिए जरा, माइनिंग, अगर आप माइनिंग करते हैं, कानकुनी करते हैं, तो ग्रेटेस्ट असॉल्ट, ये बहुत बड़ा हमला होगा किस पर? डीप सी इकोसिस्टम, जो गहरे समंदर का आबो हवा है, निज़ाम है, उस पर। एवर इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन, और इंसानों ने ही इस पर इन्फ्लिक्ट किया है, इसको नुकसान पहुंचाया है। अकॉर्डिंग टू द हाइड्रल वेंट एक्सपर्ट, ये बात इसने की है यूनिवर्सिटी में। शी आर्ग्यूज दैट एक्टिव वेंट्स मस्ट बी ऑफ लिमिट्स। ये हमने अभी पढ़ा था ना जी कि इसके किसने नुकसान पहुंचाया है, तो आप देख लें इसको ज़रा। ये था, नो अदर फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन विल हैव सच डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑन मैरीन लाइफ सी बेड। तो ये देखें, इंसानों ने क्या किया था, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ही थी जिसने इस पर डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट किया है। ठीक है, तो आप ये देख लें, डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट हुआ है, इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन हुआ है ना जी, और ये इकोसिस्टम है, द ग्रेटेस्ट असॉल्ट है, ग्रेटेस्ट असॉल्ट है। तो वो क्या कहता है यहाँ पे वो कहता है कि नो अदर फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन विल हैव सच डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट, यानी इस तरह की ज्यादातर तबाही वाला इम्पैक्ट है ना, इंसानी जो एक्सप्लोरेशन है उसकी कोई दूसरी शक्ल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये ऑप्शन दी गई है हमारी, जो ई है, जो हमें वेराना टूनिक्लिफ है, ई में उसने ये कहा है, तो हम इसके सामने ई जो है वो ऑप्शन लिख देंगे। हम देखते हैं जी हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है। असल में काफ़ी टाइम जो टेकिंग एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी से हो जाए। तो ये है माइनिंग द सी फ्लोर। माइनिंग कॉरपोरेशन बिलीव दैट द माइनिंग रिसोर्सेज लाइंग अंडर द सी। माइनिंग कॉरपोरेशन यकीन करती है कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, मादनियाती ज़राए हैं ना, जो समंदर के नीचे हैं, मे बी सुपीरियर टू दोज फाउंड ऑन द अर्थ, वो ज़मीन पर पाए जाने वाले से बेहतर हैं, हो सकते हैं। ये ऑल्सो से वो ये भी कहते हैं दैट दीज कैन बी रिमूव्ड, ये निकाले जा सकते हैं, विदाउट प्रोड्यूसिंग मच, बगैर कुछ पैदा किए, बगैर कुछ ज़्यादा पैदा किए। अच्छा जी, क्या ज़्यादा पैदा किए? हम देखते हैं, माइनस सी फ्लोर है, माइनिंग कॉरपोरेशन है, तो हम देखते हैं जी माइनिंग कॉरपोरेशन है हमारे पास, माइनिंग कॉरपोरेशंस हैं, जियोलॉजी की माइनिंग कॉरपोरेशन, ये देखें माइनिंग कॉरपोरेशन है। ठीक है जी, आर्ग्यूज है माइनिंग सी माइनिंग, डीप सी माइनिंग कुड यील्ड फॉर सुपीरियर ओर टू लैंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये एक्सट्रैक्शन के मेथड की वहाँ पे बात कर रहा है, बट मोस्ट इन्वॉल्व एम्प्लॉइंग सम ऑफ द मशीनरी। यहाँ पे हम देखना पड़ेगा, ठीक है जी, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि दे ऑल्सो से दैट दीज कैन बी रिमूव्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग मच। तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, मच प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिएगा, दे से दैट डीप सी माइनिंग, हमने पढ़ा है डीप सी माइनिंग कुड यील्ड फार सुपीरियर ओर। वो कहते हैं कि समंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ओर्स, जो मादनियात हैं, वो पैदा कर से, फार सुपीरियर है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे बी सुपीरियर, दोज फाउंड इन द अर्थ, जो ज़मीन पर पाई जाती हैं उससे सुपीरियर कर सकती हैं। ठीक है, तो दे ऑल्सो से दैट दीज कैन बी रिमूव्ड, ये निकाली जा सकती हैं, विदाउट प्रोड्यूसिंग मच, क्या ज़्यादा प्रोड्यूस किए बगैर। कुड यील्ड फॉर सुपीरियर ओर टू लैंड माइनिंग विद लिटल, विद क्या है जी, लिटल, विद लिटल, तो ये क्या है, विद लिटल, विदाउट प्रोड्यूसिंग मच, लिटल है तो विदाउट प्रोड्यूसिंग मच, क्या जी विदाउट प्रोड्यूसिंग मच है, तो विदाउट प्रोड्यूसिंग इफ एनी वेस्ट, विदाउट, विद लिटल इफ एनी वेस्ट, विदाउट प्रोड्यूसिंग मच वेस्ट। ओके जी, तो ये हमारे पास है वेस्ट, ये लें। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है द एक्सट्रैक्शन इज ऑफन डन बाय अडॉप्टिंग। ये एक्सट्रैक्शन जो है, जो निकाली जाती हैं चीज़ें, वो अक्सर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बाय अडॉप्टिंग द, किसको इस्तेमाल किया जाता है, हैज़ ऑलरेडी बिन यूज टू वर्क ऑन लैंड, और फिर वो ज़मीन पर भी इस्तेमाल की गई है, पहले ही चीज़, पहले वो चीज़ ज़मीन पर भी इस्तेमाल की गई है, अब उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इस एक्सट्रैक्शन के लिए, चीज़ों को निकालने के लिए। तो हम देखते हैं जी यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन है ना जी, मुख्तलिफ तरीके जो हैं एक्सट्रैक्शन के वो इस्तेमाल किए गए एग्जिस्ट, बट मोस्ट इन्वॉल्व्ड एम्प्लॉइंग सम फॉर्म ऑफ कन्वर्टेड मशीनरी। तो मोस्ट इन्वॉल्व एम्प्लॉइंग सम फॉर्म ऑफ कन्वर्टेड मशीनरी,
अब प्रीवियसली यूज्ड इन टेरेस्ट्रियल माइनिंग, प्रीवियसली यूज्ड है तो ये देख लें, हैज ऑलरेडी बिन यूज्ड, वर्क ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल, लैंड कहते हैं जमीनी, अर्थली, ठीक है जी, ये देखें, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल है, हैज ऑलरेडी बिन यूज्ड है, तो यूज क्या किया गया है, तो ये देख लें, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एग्जिस्ट बट मोस्ट इन्वॉल्व्ड एम्प्लॉइंग सम फॉर्म ऑफ कन्वर्टेड मशीनरी, ज़्यादातर में मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, और यही चीज़ पहले भी इस्तेमाल की गई है टेरेस्ट्रियल ज़मीनी माइनिंग के लिए, टू एक्सकेवेट मटेरियल्स फ्रॉम द सी फ्लोर, और ताकि ये सी फ्लोर से जो मटेरियल है उसको निकाल सके, तो क्या इस्तेमाल किया जाता है जी, मशीनरी, MACHINERY, ये ले। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, हाउएवर कंसर्न्ड ग्रुप्स स्ट्रांगली बिलीव दैट इज नेसेसरी, कोई चीज़ जो है वो नेसेसरी है, हम देखते हैं जी कि वो क्या चीज़ जो है वो नेसेसरी है, ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो ये क्या कहता है, बट एनवायरमेंटल एंड लीगल ग्रुप्स हैव अर्ज्ड, उनकी ख्वाहिश है, उनकी क्या है जी, ख्वाहिश है, तो वो देख लें, हाउएवर कंसर्न्ड ग्रुप स्ट्रांगली बिलीव यकीन दैट इज नेसेसरी, अर्ज उनकी ख्वाहिश है, ये ज़रूरी है, ज़रूरत क्या है जी, कंसर्न्ड ग्रुप स्ट्रांगली बिलीव, वो यकीन करते हैं, दैट इज नेसेसरी, कि कोई चीज़ ज़रूरी है, ड्यू टू द पॉसिबल नंबर ऑफ अनआइडेंटिफाइड कॉन्सिक्वेंसेज, कि ऐसे नताइज जो नाकाबिल शनाख्त हैं उनकी मुमकिन तादाद के लिए कोई चीज़ ज़रूरी है। अब क्या चीज़ ज़रूरी है, अब देखें, हाउ एवर कंसर्न्ड ग्रुप स्ट्रांगली बिलीव दैट इज नेसेसरी, कौन सी चीज़ ज़रूरी है, अब देखते हैं, एनवायरमेंटल एंड लीगल ग्रुप्स हैव अर्ज्ड काशन, क्या ख्वाहिश है उनकी जी, काशन, काशन क्या होती है, एहतियात, ठीक है जी, वो भी यही कहते हैं, बिलीव दैट काशन इज नेसेसरी, कि एहतियात ज़रूरी है, ठीक है जी, ये देख लें, एहतियात ज़रूरी है, तो ये था हमारा डीप सी माइनिंग, ठीक है जी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ये था टेस्ट 4 रीडिंग पैसेज 2 बुक 19 एकेडमिक रीडिंग, इंशाल्लाह जल्द आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।